वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो समरी कौन कर रहा है? मैं महाराज, मैं कौन? निवेदिता। करो। ओके ओके। ब्रह्मरूपादि मध्य शेष सर्वभासकं भावषटकहीन रूप नित्य सत्यमद्वयं वाङ्मनोति गोचरं च नेति नेति भावितं तं नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वरम्। First, I will salute to my Guru, Sri Ramakrishna, and Ma Sharada, and Swamiji, and my Shiksha Guru, Swami Brahmeshananda ji. Today, we are having the discussion from the book How to Live with God by Chetanananda, and the topic is also very beautiful, how to understand Ramakrishna. Some disturbance is coming. Brahma is fathomless, limitless, boundless, infinite, indivisible, and formless, one without a second. Human mind and the sense organ, intellect cannot know Brahma, the infinite. Keno Upanishad hints at this 1.3 third mantra. He by whom Brahma is not known knows it, and he by whom it is known knows it not. Ramakrishna told Pandit Vidyasagar what Brahma is, which cannot be described. All things in this world, Vedas, Puranas, Tantra, and Darshan, have been defiled like food that has been touched by the tongue, by reading and uttered by tongue. Only one thing which has not been defiled is this way, in this way, that is a Brahma. In Bengali, Brahma Uchishta hoy nai. No one has ever been able to say that Brahma is a Brahma is a Brahma beyond beyond the word and the thought, beyond the mind and speech. Brahma is Brahma is the real nature of human being also, and the goal of human life is to realize the true nature of Brahma, that is self. That is why the God manifests as an avatar with the form and qualities, so that human beings can think and meditate on him. When mind becomes pure, free from the desires and the ignorance, human being returns to his own abode, which is Brahman. It is extremely difficult to recognize the avatar, God in human form. He eats, sleeps, and performs all action like ordinary person. Yet he is different, unique, and extraordinary. One day, Thakur asked him whether he finds Thakur like any other person or Paramhamsa. Master said, no, sir. Uh, Master Miss M said, no, sir. Then Thakur told about a tree which is called Achina tree, that is unrecognizable. M said, it is not possible to recognize you. The more a man understands you, is more the more he's uplifted he will be. Ramakrishna know who he was. Only sometimes Thakur used to disclose his identity to his close devotees. Once he said, there is no outsider here. So the other day, Harish was with me. I saw Sachidananda came out of the sheath. He said, I incarnate myself in every age.
I saw the fullest manifestation of Sachidananda. But this time, divine power is manifested through the glory of Sattva. When Thakur's mother died, he cried in the divine way, Mother, how fortunate you are that you carried me in your womb. She was not an, you are not an ordinary woman. Master sometimes became one with Brahma in Nirvikalpa Samadhi. But when he descended to the dualistic plane, he perceived the world as we do. He told his devotees, there are two persons in the body. One is Divine Mother and other is her devotee. It is the devotee who broke arm, who is ill now. Do you understand? Alas, to whom shall I say all this who will understand? Master used to point himself and used to tell, this is Patal Fodaship, that is the natural sprung up of the Shivalinga. Master himself was declared that he who was Rama and Krishna, who was Krishna, is now Ramakrishna in this body. Thakur said, seeing an incarnation of God is the same as seeing God himself. Jesus also said that he has seen me, those who have seen me has seen the Father. I and my Father are one. Now who can know God? No one can recognize Avatar if he does not want to be known. One can know him by his grace, otherwise not. Arjuna could not understand Krishna. The Vedanta scripture says, Tasya bhasa sarvavidam vibhati. All are lighted by the light of Atma. All beings in the world are conscious because of Atma is conscious. When the light of Atma falls on the intellect, that reflected light is called Chidabhas. As children hold the mirror and focus the reflected light of the sun onto the various objects, so the people acquire knowledge by using their intellect to focus the light to the light of Atma on the different object. When the people focus that reflected light of consciousness on God, they attain the knowledge of God. Intellect of the ordinary people like us are covered by the ignorance. If one earns to know God and purify the intellect by sadhana like japa, dhyan, swadhyay, God is God is merciful and draws one's intellect towards him. Egoistic person cannot understand God. Master tells that Dhyanis think that God is without form. They don't accept the divine incarnation, but I accept God with form and formless both. Brahman is beyond mind and speech. A salt doll entered the ocean to measure the depth of the ocean, but it did not return to tell how deep is the ocean. This is the example for knowing the Brahma. It melted in the ocean itself. It is the God alone who incarnates himself through his Yoga Maya as man to teach the people the ways of love and knowledge. Ramakrishna cannot be known without practicing austerities and renunciation. Scripture said, Devo Bhutva Devam Yajit. First be God and then worship God. One has to develop divine nature to understand God. There is a beautiful story of Indra and Virochan in Chandogya Upanishad, where the Indra had to do tapasya for 101 years. Also, Guru is required. Meditate on the life and message of the Ramakrishna, then one will be able to know, one will be able to have some glimpses of truth. As explained by Ramakrishna to him, he told, imagine a field
extending to the horizon and beyond, and it extends without any obstruction, but we cannot see the on account of a wall in front of us. In that wall there is a round hole. Through the hole we can see the part of the infinite field, and the whole is avatar. Thakur was very much pleased with to hear this from M. And Thakur tried to hide himself from the human being by poverty and school, not going to the school, not having big name, and he was the mere priest in the Kali temple. Ramakrishna in the eyes of relatives. They could not understand Master as Avatar. Hridaya, who lived with Master for 26 years, could not understand him, although he has saved him, he has served him so intently and protected him. But Hridaya's mother did recognize Master's divinity. She used to worship his feet with the flowers and sandal paste. Mother Chandramani could not understand him as Avatar, not even Haldari, Master's cousin. Once Master cautioned Haldari for practicing questionable asteric sadhana. Angry Haldari, he was he cursed Master that he would vomit blood, but that was boon for him. Master Ramakrishna in the eyes of temple officials. In Gita we see Janma karma cha me divyam yo veti tattvata tyaktva punarjanma naiti mameti so Arjuna. And those who know the Janma karma of Avatara will have no rebirth. Rani Rasmani and Mathur Babu. At first they did not recognize, but slowly with devotion and Thakur's kripa, they came to know his divine form. Mathur Babu tested him in so many ways, but he saw both Kali and Shiva in him. He realized him as God. Bholanath Mukhopadhyay, who was a manager, could understand Master a little bit. To our surprise, how Bhartahari, the gardener, and Rasik, who was the sweeper, could understand his divinity and got mukti also. Ramakrishna, in the eyes of his guru and pandit, Bhairavi Brahmani could guess that Master is an expert expert in and experiencing the Mahabhava, like Radha and Chaitanya Mahaprabhu, could recognize all the symptoms of as burning sensation in the body and extreme hunger. She solved the problem. Also, she called for a meeting with Vaishnava Charan and Gauri Pandit to establish him as Avatara. The Vaishnava Charan remarked he also remarked the Mahabhava, which consists of 19 main spiritual modes, which so far manifested only in Radha and Chaitanya. All these signs are in Master. Gauri Pandit said that he is greater than the Avatara, a power by whose grace Avatara comes forth to this world in every age and accomplish their mission. Pandit Padmalochan also recognized after seeing his samadhi and declared him as avatar. Once a famous Pandit from Uttarpada in Calcutta came to visit Master, and seeing that Master is sitting on the bed, and he said that he is a fake Paramahansa, told everyone also. But when he went to sat for meditation on the bank of Ganga, he closed his eyes and started meditating on his chosen deity. All of a sudden, he ran to Master's room and he saw that Master was in Samadhi. With folded hands, the Pandit addressed him as God and he began to recite hymns praising him. So, in conclusion, is that it is very, very difficult to recognize avatar without the purification of the mind and intellect, and by sadhana and austerities, the blessings of Guru and the blessings of Avatara himself. Jai Shri Ram. Yes, good. Very good. Very good. Okay, okay, Very good. But okay. the last So it is a big chapter. I'm glad you have done it.
It's a very, very big chapter. Okay. So now shall we take up the questions? Yes, Maharaj ji. तो दिलीप भाई आप पहले चाहते हो? जी महाराज जी, प्लीज. चलो बोलिए. तो पहले दिलीप भाई प्रश्न पूछेंगे. हाँ महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न पेज नंबर 113. What is the meaning of a body in space? देखो पूरा सेंटेंस पढ़ो, शुरू से पढ़ो. मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ. ये कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है महाराज जी, देखो. ये आप लोग जानो, मेरे को क्यों पूछते हो जिससे? अच्छा सॉरी जी. ये सतीश जी का माइक ऑन है. हो गया? सतीश बंद कर दो. The vast ocean has a fixed depth and is bound by shores. However, देखो ये इधर पहले ये समझ में आया कि नहीं? जो हाँ, ये समुद्र समझ में है आ गया, ये तो आ गया. उसकी Yes, गहराई निश्चित है और चारों तरफ कैसे किनारा है. अच्छा, बराबर. However extensive the earth may seem, it is nonetheless limited. A body is nonetheless. और क्या है, वो क्या कहते हैं? और हाँ, उसी प्रकार अर्थ पृथ्वी चाहे कितनी भी बड़ी होवे, हाँ, फिर भी इट इज नॉनदलेस लिमिटेड, फिर भी वो सीमित है. हाँ, वो अब इसके आगे a body in हाँ, space. ए बॉडी यानी मान लो एक हाँ, मेरा शरीर जो है ना, हाँ, मेरा शरीर जो है वो चारों तरफ स्पेस है ना, हाँ, तो मेरे माय बॉडी इज इन स्पेस. यानी आई एम अरे लिविंग इन स्पेस. देखो तुम स्पेस में हो कि नहीं? स्पेस समझते हो कि नहीं? नहीं महाराज जी, ये इसके अंदर स्पेस समझ में देखो नहीं देखो आया. देखो देखो सुनो. हाँ, स्पेस यानी क्या है? स्पेस यानी आकाश, खाली जगह. हाँ, हाँ, बराबर. हाँ हाँ, तो अब मेरा शरीर खाली जगह में है. जी, आकाश के अंदर है जी. हाँ, उसी प्रकार जो पृथ्वी है वह भी आकाश के अंदर है. हाँ, बराबर जी. बस यही तो लिखा है, और क्या लिखा? तो यानी हाउएवर एक्सटेंसिव अर्थ में, पृथ्वी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कितनी भी हमको कितनी बड़ी दिखाई देती है, देखो पृथ्वी को हम देखो कर सकते हैं क्या? फिर भी लिमिटलेस जी. वह भी जो है वो आकाश में है. पृथ्वी के चारों तरफ आकाश है ना, वो तो गोल है. जी. तो महाराज जी, इसका अर्थ ये हुआ कि आकाश लिमिटलेस है, पृथ्वी लिमिटलेस नहीं है, ये कहेंगे हम? हाँ, यही कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना. जी, राइट, ओके. हाँ, तो ये महाराज जी यदि ये कहते तो इसका अर्थ ये है कि आकाश को हम ब्रह्मांड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नहीं, ये समझाने के लिए बात की जा रही है. अच्छा. उसके आगे पढ़ो ना. हाँ, मैं आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही रहा है. नहीं, उसमें है थोड़ा, इवन सीमिंगली लिमिटेड यूनिवर्स इज बाउंडलेस बाउंड्रीज. ये जो सारा जो ब्रह्मांड भी है, वैसा लगता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी भी सीमा है. केवल एक ही सीमा वर्हित है जी. बिना सीमा के है, वो भगवान है. वो फैथमलेस, लिमिटलेस, बाउंडलेस, इनफिनिट, इनडिविजिबल एंड फॉर्मलेस है. वही एक ब्रह्म भगवान भी है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है. बाकी जितना भी ये ब्रह्मांड है ना, ये भी सीमित है, ये कहना चाहते हैं. और कुछ बराबर जी महाराज जी. Now my second question on the same page 113. It says in any enigmatic, mysterious language, the Kena Upanishad hints at this. He by whom Brahman is not known knows it. He by whom it is known knows it not. It is not known by those who know it. It is known by those who do not know it. Maharaj ji, the language is very mysterious. सुनिए. क्योंकि ये लैंग्वेज इसलिए मिस्टीरियस है क्योंकि ब्रह्म मिस्टीरियस है. मैं ब्रह्म है ना, ब्रह्म का समझ लिया हमने. ब्रह्म का
जब पास करते हैं तो ब्रह्म क्या हो गया, हमको मन में आ जाता है हाँ ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है ना, इतना बड़ा है ब्रह्म, ये ब्रह्म है, हाँ, पर ऐसा आता होता है कि नहीं। नहीं? यस यस यस, जी जी जी। तो ये हो सकता है क्या? हम्म। ये ब्रह्म जो है वो ऐसा मिस्टीरियस है, लगता है कि हम जानते हैं लेकिन जानते नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब पढ़ लो, इसको समझ में आ जाएगा। जो समझता है कि मैंने ब्रह्म को जाना है वो नहीं जानता। और जो कहता मैं नहीं जानता हूँ वो सब कुछ जानता है, ये कैसे हाँ, possible? वो नहीं जानता है, वो ही जानता है। हाँ, वो सेकंड सेंटेंस समझ में नहीं आया कि जो वो नहीं इट इज जानता वो नॉट, सब जानता। हाउ इज इट मैंने पॉसिबल? वो उसको बताने के लिए कहते हैं, यही बताने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मन को ऐसे नहीं जाना जा सकता जैसे मैं दिलीप भाई को जानता हूँ। It is not known. It is not known by whom we know. It is known by those who do not know. हम नहीं हाँ जानते भाई। अब जो बोलता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, वो ठीक ठीक थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा तो समझता है कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। हाँ, ब्रह्म नाम की कोई चीज है, ये तो समझ बस गया। बस 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 बस। राइट, ओके, जी जी। महाराज जी, ये केनो उपनिषद क्या इससे इट इज हैविंग ए मिस्टीरियस लैंग्वेज? नहीं। तो छोटा सा उपनिषद है वो, बड़ी मिस्टीरियस है, उसमें कुछ। हाँ, वो क्योंकि इसने लिखा है इसलिए। अरे तुम पढ़े ना तुम्हारे जैसा विद्वान कोई है कि क्लास प्रणाम महाराज जी, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। में? महाराज जी, महाराज, ऑब्जेक्टिवली नहीं जाना जा सकता है, सब्जेक्टिवली जाना जा सकता वेरी ठीक है, चलो आगे चलो। महाराज जी, हाँ, थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 113। द सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी, व्हाट आर द सिक्स सिक्स सिस्टम्स ऑफ ये फिलोसॉफी? षट दर्शन, छह हाँ दर्शन। ओ, जी तो जी। जर के दर्शन के नाम सुन लो बस, और कुछ नहीं। हाँ न्याय, जी। न्याय एक बोलो, एक न्याय, दूसरा न्याय, वैशेषिक, तीसरा हाँ सांख्य, चौथा जी, योग, हाँ पांचवा पूर्व मीमांसा, हाँ, और छठा है उत्तर मीमांसा। ये उत्तर छह में। दर्शन हो गए। अच्छा, ये अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सेंटेंस इन्होंने कहा है, व्हाट ब्रह्मन इज कैन नॉट बी डिस्क्राइब ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, द वेदास, द पुराणास, द तंत्रास, द सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी हैव बीन डिफाइंड, they defiled, it is not defined, defiled, like food that has been touched by the tongue, for they have been read or वो अंग्रेजी सुनो, प्रॉब्लम अंग्रेजी का और कुछ नहीं है, हिंदी में बिल्कुल सरल है। okay, ये जितने भी दर्शन है ना, ये झूठे हाँ हो गए हैं। अरे खाना खाते हैं ना, हाँ हाँ, अब प्लेट में आया खाना, उसमें से तुमने एक आधी रोटी खा ली, ओ यस तो वो महाराज तुम्हारी जी, थाली तो थाली झूठी हो गई ना, हाँ 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 और दूसरे को नहीं दे सकते ना। हाँ हाँ, तो पर जो 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 चीज मुंह में डाल देते हो ना, झूठी हो जाती है। जी, पर जो मुंह तो से ये, बोलते वो जो मुंह हाँ से झूठा हो बोलते वो गया, झूठी नहीं होगी। हाँ झूठा हो गया। नहीं नहीं, जो, तो हाँ बोलिए महाराज जी। जो ये पांच, ये जितने भी छह दर्शन, सांख्य, न्याय, हाँ वैशेषिक, ये कितने हैं ना, ये सब तो मुंह से बोलते हैं ना, हाँ, तो ये झूठे हो गए। अच्छा, और ब्राह्मण क्या दिल में रखते? ब्राह्मण को झूठा, मैं ब्राह्मण को वर्णन नहीं कर सकते। नहीं, इसके आखिरी जो लैंग्वेज महा, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण महा, को कोई से बोल नहीं सका है। देखो, ओनली वन थिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस वे, एंड दैट इज ब्राह्मण। ये सब सांख्य दर्शन इत्यादि झूठे हो गए, इतना समझ में आ गया दिलीप भाई? हाँ हाँ, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद में ये सेंटेंस आया है कि हाँ ओनली वन थिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस वे, दैट इज ब्राह्मण। yes, हाँ एक चीज जो है वो मुंह से नहीं बोली जा सकी, इसलिए झूठी नहीं हुई है। हाँ, क्या नहीं हुआ है? ब्राह्मण। No one yes, has ever been able to say what Brahman is. देखो ना, उसके हाँ, आगे लिखा है, आगे लिखा है आखिर कोई नहीं बता सका कि ब्रह्म क्या है। that is the way shallow mind thinks, that don't know that Brahman is beyond one's words and thoughts. Yes, समझ गया? आप तो समझे कि नहीं आप समझे? जी समझ गए, आप समझ गए। चलो। पेज नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 4। I and my father are one.
महाराज जी ये जीसस साहब क्या कहना चाहते थे? उसका ये कहना है ईश्वर और अवतार एक। हाँ आई यानी फादर जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं जीसस मैं। क्राइस्ट, हाँ फादर। वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे पिता यानी भगवान। अच्छा तो जीसस इज नॉट अ गॉड। जीसस बोल रहे हैं मैं और भगवान एक हैं। हाँ नहीं, जीसस सेड आई एंड माय फादर। फादर, आई मीन्स जीसस एंड फादर मीन्स गॉड। अर्थात Yes. अवतार और ब्रह्म एक है। हाँ तो यहाँ ब्रह्म का लिखा है, यहाँ तो हाँ फादर। वही जो अरे गॉड बोल गॉड रहे थे वो गॉड लिखा ब्रह्म। है ना, हाँ गॉड गॉड गॉड। गॉड है ना। Nowhere it is written very I and ऐसा my है कि father are वहां पे one. वो दिलीप भाई गए नहीं उनको। दिलीप भाई जाते तो जीसस क्राइस्ट को बताते थे कि भगवान का नाम ब्रह्म है। अच्छा अच्छा। वहाँ भगवान को वो लोग गॉड बोलते हैं, फादर बोलते हैं। हाँ फादर नहीं, गॉड नहीं, फादर बोलते, फादर। हाँ तो फादर बोलते हैं ना। यस हाँ, नॉट गॉड। गॉड भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं। ओके हम भी जैसे ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं। तो वैसे ओके। वो लोग भी फादर बोलते हैं। तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि मैं, हाँ ये जो मैं अवतार लिया है, हाँ और हाँ। फादर ओके यानी हाँ, भगवान दोनों एक भगवान हैं। बराबर। हाँ जी जी महाराज, आई माय फादर। ओके, क्वेश्चन 5। The Atman is attained by him alone, whom it chooses. We have to pray every day to God, O Lord, be gracious and turn the light of knowledge on thyself, that I may see thy face. How the God can turn the light of knowledge on thyself? देखो That's what- आगे अगर लो तो डिस्क्रिप्शन करे ना, ये पुलिस वाला आया जा रहा है, पुलिस वाला, जी पुलिस वाले के हाथ में टॉर्च है। हाँ हाँ, यस यही तो कहा है। टॉर्च के द्वारा पुलिस वाला सब कुछ देखता है। हाँ, जी लेकिन सामने दिलीप भाई तो पुलिस वाले का चेहरा नहीं देख पाते। हाँ बराबर। हाँ, तो उसको पुलिस वाले को कहते हैं कि प्रभु, पुलिस वाले आप जो टॉर्च है ना, आपके चेहरे, खुद के चेहरे पे डालो ना जरा, हाँ तो मैं आपको तेज देख सकूं। हाँ 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 जी। ये आगे एग्जांपल दिया है, पर लेकिन द आत्मन इज अटेंडेड बाय हिम अलोन whom it chooses। माने यानी जिसे आत्मा जिसके ऊपर अपना लाइट टॉर्च डालेगा, हाँ पुलिस वाला जिसके अपने चेहरे पर जिसके सामने टॉर्च डालेगा, वो जान सकेगा। अगर वो ब्रह्मेशानंद जी के सामने उसने अपना लाइट को, टॉर्च को डाल दिया, तो दिलीप भाई नहीं देख सकेंगे, ब्रह्मेशानंद देख लेगा बस। यस। सो बराबर महाराज जी, बिल्कुल समझ में आ गई बात यहाँ तक तो। अच्छा, नंबर 6 ले लें। द अवतार इज अ मिस्टीरियस फिनोमिना। महाराज जी ये मिस्टीरियस फिनोमिना से मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस होता है क्या? अरे रहस्यमय, रहस्यमय को हिंदी में समझते हो, बांग्ला है, हाँ हाँ हिंदी है। नहीं तो अवतार रहस्य में थोड़ी होता है। तो वो क्या ब्रह्म क्या सीधा होता है, आसानी से समझ में आ जाता है? इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आता है। जी इसलिए कि वो रहस्यमय है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी तो आप समझा वही दें। साधना, यानी किताब पढ़ने से भी समझ में नहीं आता, साधना नहीं करनी चाहिए, जी हाँ, क्योंकि आगे इसमें तपस्या लिखा करनी हुआ कि चाहिए, किताब से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, चित्त शुद्धि करना चाहिए। जी और श्री रामकृष्ण ने तो कुछ किताब विताब नहीं पढ़ी, बस तपस्या की, साधना की, हाँ तब उनको रहस्य समझ में आया। जी। अच्छा, यानी ये स्पिरिचुअल और स्क्रिप्ट पढ़ने से कोई ज्यादा समझदारी नहीं आएगी। हाँ जी, जूम से भी भगवान नहीं समझ सकोगे। नहीं नहीं महाराज जी, इसमें लिखा हुआ है कि तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आपके सत्संग में रहेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, बजाय कि किताब और ये इससे। अब ये ये लिखा यहाँ तो हुआ है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, ऐसा तो कहाँ लिखा नहीं हुआ है किताब मैं में। मैं मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं अभी पढ़ लूंगा, यहाँ क्वेश्चन भी है। लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7।
How one yearns to know God. इसी के अंदर है. हाँ, Yes. व्याकुलता होने पर भगवान को पकड़ समझ में आएगा. कैसे? जैसे अपने पुत्र को हाँ. अपने पुत्र को प्यार करते हो, पुत्र के लिए माँ व्याकुल होती है, उसी प्रकार भगवान के ऊपर व्याकुल होना, इसको बोलते हैं यर्निंग. हाँ. यर्निंग का शब्द है व्याकुल होना. व्याकुल होना, बराबर. तो ये आप सब जानते हैं. हम लोग बिजनेस के लिए कितने व्याकुल होते हैं, संसार में संसारी लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए कितने व्याकुल होते हैं. भगवान के लिए ऐसे व्याकुल होने पर ही उनको मत मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते. हाँ जी 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 महाराज जी. Now question number 8. Let me tell you one thing. One should follow various paths. One should practice each creed for a time. I had to practice each religion for a time. Hinduism, Islam, Christianity. Furthermore, I followed the paths of the Shakts, Vaishnavas, and Vedantis. I realized that there is only one God towards whom all are traveling, but the paths are different. Maharaj ji, my question is, we have been told that sadhaks should follow only one religion and path. Here, Ramakrishna has practiced many paths. नहीं, लेकिन रामकृष्ण भी बोले कि एक ही पाथ को फॉलो करो. But he practiced many paths. मैंने ये बताने के लिए कि सब पाथ ठीक है. हाँ, अनेक पाथ है, ये रामकृष्ण देव कह रहे हैं. हाँ, ये बात कहते हैं कि अनेक पाथ है, सब सत्य है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना हो तो केवल एक करो. ओके, अच्छा. अरे बंबई जाना है तो बंबई जाने का तो समुद्र से भी जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, पैसेंजर से जा सकते हो. हाँ. तो क्या 10 प्रकार से मुंबई जाओगे? क्या एक ट्रेन ही तो लोगे? यस 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 जी. तो फिर ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते हो? नहीं तो अच्छा, पर हमको ये बताया गया है कि इतने पाथ है रिलीजन है. क्रिश्चियन बन के भी आप ईश्वर को सभी पाथ. सभी सभी अपने आप में ठीक है. ओके, अब अपने कैसे. लेकिन ऐसा मत करो कि 2 दिन तक भगवान विष्णु का नाम लिया और उसके बाद शिव का नाम लिया. ऐसा नहीं करना. ओके जी. हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. দেওয়ালে গায়ে ওই জায়গাটা ভরে দিও, যে গর্তটা আছে হ্যাঁ ওই গর্তটা আছে, গর্তটা ভরে দাও. ঠিক আছে, যতটা না ওখানে যারা কাজ করবে পয়সা আমি দেবো. ইথু ম্যাডাম প্লিজ. अरे अनम्यूट म्यूट करो. हाँ महाराज जी. हाँ महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 9. Maharaj ji, do every human being see dreams during sleep? So my question is number 1, whether dreams are unfulfilled desire of a man. Question number 2, the dreams are true. And question number 3, dreams of we normal people and spiritual persons are different. देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? ये स्वप्न सही चीज है कि स्वप्न आते हैं लोगों को, यहाँ से हम चले. स्वप्न ऐसा आते है, अपने अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं, उससे अच्छे से जगत सत्य से कुछ लेना देना नहीं. महाराज जी, ये कहते हैं कि ड्रीम्स आर नथिंग बट दे आर द अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ अ मैन. अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं, वासनाएं, विचार होते रहते हैं, वो सपने में आते हैं बस. अच्छा, वो सीधी बात. ये नहीं तो फिर मेरा वासना है तो हम अच्छी भी रखते हैं, बुरी भी रखते हैं. यदि हमने ये सोचा कि हमें ठाकुर के दर्शन करना है ये सोचते ही रहे, तो क्या एटलीस्ट कैन वी गेट इट इन ड्रीम? ठाकुर के ऐसा ही तुमको स्वप्न आएगा कि तुम दक्षिणेश्वर में घूम रहे हो. अच्छा, दैट इज पॉसिबल. ओके. दूसरा क्वेश्चन, we should do like this. हाँ. सब समय यदि दक्षिणेश्वर का चिंतन करते रहोगे, श्री राम कृष्ण का चिंतन करेगा, तो तुमको स्वप्न भी श्री राम कृष्ण का आने लग जाएगा. अच्छा जी 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 महाराज जी, गुड. अच्छे संस्कार आएंगे महाराज जी. क्वेश्चन नंबर 10.
टू दूसरा का ये हो गया पूरा तुम्हारा? नहीं, हाँ, ड्रीम्स आर ट्रू हो गए। ड्रीम, हाँ, अब ये था कि ड्रीम्स ऑफ वी नॉर्मल पीपल एंड द स्पिरिचुअल पर्सन्स आर डिफरेंट। अब Yes. एक ये नहीं, अभी एक पर्सनल जैसी बात ये हो गई है, वेरी वेरी माफ कर रहे हैं का महाराज जी, यदि जब मनुष्य को स्वप्न तो आते ही है और रोज आते ही ये भी कहते हैं, तो हमारे सपने और सपने जो रात को आते हैं वो दिन में भूल जाते हैं कि क्या सपने आए थे। दैट इज नॉर्मल जो मैंने सोचा। अब मेरा सवाल ये है कि जो हमको सपने आते हैं और माफ, हाँ, आपको जो सपने आएंगे तो उसमें बहुत अलग होंगे क्या? तो It's a अलग तो very होंगे, personal दोनों question. दोनों सुबह भूल जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रात को जो आते हैं जो समय के लिए, तो आपको हाँ। दर्शन में रामकृष्ण आपको मीन नॉट पर्सन, परंतु के जो स्पिरिचुअल साधक होते हैं, जो महाराज है, उनको रामकृष्ण देव के दर्शन सपनों में हो सकते हैं। नहीं नहीं, कभी भी हम तो मकान में रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं हमेशा रामकृष्ण का चिंतन थोड़ी करते रहते हैं। हम तो खाते पीते हैं, जूम मीटिंग पे बातचीत भी करते हैं, तो जैसा हम करते हैं दिन भर उस प्रकार का दर्शन आएगा, स्वप्न होएगा, उसमें क्या। अच्छा, आई सी जी। महाराज जी, देखो जैसा, सुनो सुनो दिलीप भाई, जैसा हम जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही स्वप्न आते हैं। जी महाराज जी, इस सिलसिले में प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। इस सिलसिले में एक क्वेश्चन करने का है, करूं? करिए। आप ऐसा है कि आप नॉर्मली क्वेश्चन क्यों नहीं करते, ओनली जब बात चलती है तब प्रश्न करते हैं, ये पसंद नहीं आता हमको। महाराज जी, प्रश्न आता नहीं है, मन से आता नहीं है। ये नहीं तो किताब, इतनी बड़ी किताब दी है, इतने पेजेस हैं, आप नहीं पढ़ सकते उसको? पढ़े ना, कल 12 बजे तक तो पढ़ खत्म किया रात। ये पूरा आर्टिकल 70। फिर भी प्रश्न नहीं आया आपको? नहीं महाराज, मेरा प्रश्न आप पूछ लीजिएगा महाराज जी, तो बहुत मेरे अच्छा दो होगा। और बच्चे में दो और देखिए बच्चे देखिए, ऐसा है, सुनिए एक बात समझ लीजिए, मेरे को प्रश्न पूछने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे तो यह बातचीत का इंटरप्शन होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है। नहीं, मैं इसी सिलसिले में क्वेश्चन ऐसा नहीं है, उनका बात से ये क्वेश्चन पूछिए पूछिए। हाँ, मैं ये जो भी सपने के बारे में बताया अभी, ड्रीम्स इज ड्रीम्स आर इज इक्वल टू द, आवाज नहीं आ रहा है। मैं ड्रीम्स जो होता है ये क्या शटल बॉडी में जो हमारा रहता है वही आता है क्या ड्रीम्स में? और सबकॉन्शियस शटल बॉडी क्यों, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ होता रहता है वही तो ड्रीम में आते हैं। That is a known fact. हाँ, the constitution of the shuttle body is nothing but the dreams of the person, is it? अरे don't confuse the two things. Dreams are produced because of subconscious mind. यस। Okay. ये You are confusing. महाराज जी, अच्छा, मेरा इतू घोष, इतू आ रही हो कुछ? महाराज, मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। मैं हाँ, एक चलो पूछवा हाँ। दो, बोल दो आप। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न है नहीं from अभी the- दिलीप भाई के कंप्लीट नहीं हुए। ओ, नहीं, अच्छा इनको अच्छा, जल्दी है महाराज जी। अभी मैं एक ठीक है। नहीं सब महाराज, लोग, no one is interested in the class, everyone is interested in going out immediately after half an hour. No one महाराज wants to listen to anyone else afterward. What is this? महाराज, क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट बी ए गॉड एंड देन वर्शिप गॉड, यानी ईश्वर शरीर के बनो और फिर ईश्वर को। हाँ। तो ईश्वर शरीर के बनेंगे कैसे जब, और फिर ईश्वर, और यदि हम ईश्वर शरीर के बन गए फिर हम ईश्वर की पूजा क्यों करेंगे, ईश्वर ही बन गए। जब ऐसा है क्या है, when only you like to worship, यानी ईश्वर का भाव हमारे मन में नहीं आएगा तो ईश्वर का कैसे ध्यान करेंगे। यानी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात कही गई है। यानी हमारे मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन पापी, सुनो, पापी व्यक्ति भी जब श्री रामकृष्ण के पास रहता था तो श्री रामकृष्ण उसके मन को ऊपर कर देते थे, उसके मन में भगवान का भाव ला देते थे और तब वो भगवान का ध्यान कर सकता था। जी, डिस्टर्बेंस। ईतू जी, आपका माइक बंद करिए, वो डिस्टर्ब हो रहा है।
Yes. Yes, Maharaj ji, question number 11, very quick, I'm passing. One cannot know God by reading books or listening to lectures. Maharaj ji, जो पुराना question था उससे continuation में ये problem आ गया. One cannot know God by reading books or listening to lectures. One can understand a little by practicing austerities and sadhana. Without having holy company, one cannot grasp the idea of reality or God. Meditate on the life and messages of Ramakrishna. Then one will be able to have some glimpses of truth. Maharaj ji, this is a very strong sentence, very, very strong sentence. Maharaj ji, my question is, even after practicing austerities and sadhana, one can understand very little. So, holy company is more important than austerities and sadhana. Is it correct? Yes. Question Yes. number, yes. Question number 2. Meditate on the life and the messages of Ramakrishna. Are the books on the life and messages of Ramakrishna are not scriptures? Say the gospel of Sri Ramakrishna is above Gita and other scriptures. देखो ऐसा है कि गीता तो भगवान ने बोल दिया. श्री हाँ. रामकृष्ण का जो जीवनी है ना, वो तो श्री हाँ. रामकृष्ण लिविंग एक्चुअली हमारे सामने आते हैं. जी, अच्छा. तो वो जी, भी जी. स्क्रिप्चर ही है. कहने का Okay. इनका मतलब यह है कि एक यदि स्क्रिप्चर भी पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि तुमको भगवान का लगे कि हाँ भगवान बोल रहे हैं. अर्जुन को यदि श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री कृष्ण का तुमको लगे कि हाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो पढ़ो ना. गीता में कोई बुराई नहीं. ओके. पर यहाँ पे जो इसके ऊपर जो लिखा है सेंटेंस, उसमें ये लिखा है कि austerities and sadhana is more important other than the reading of the books. क्योंकि ये रीडिंग ऑफ द ऑस्टरी और साधना नहीं होगी तो किताब पढ़ने से थोड़ी देर तक भाव रहेगा, फिर नहीं चला जाएगा. Correct. जी. Question number 12, only last question my. He is, avatar is devoid of body consciousness. Actually, he is bodiless. Then how we are rated Ram and Sri Krishna are the bodiless? Then what about their activities and the leela they have performed? Yes, Maharaj. वो ऐसा है कि वे बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं थी उनको. हमको बॉडी दिख रही है. श्री राम कृष्ण की बॉडी दिख रही है, श्री राम कृष्ण फोटो दिख रही है. श्री राम कृष्ण से पूछो तो श्री राम कृष्ण को लगता था कि मेरा बॉडी है ही नहीं. यानी ये अवतार लोग हैं, उनको बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती कि मैं बॉडी हूँ. अच्छा. ये बात है. ओके. अब महाराज जी एक छोटा सवाल इसमें खड़ा है कि राम को वनवास में पहुंचाया या कृष्ण ने यहाँ से वहां गए, तो उस समय वो क्या ये समझते थे कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ? हाँ. और ये बीच में आया भी है, ऐसे वर्णन आते हैं. अच्छा. वो राम जो है रो रहे थे. हाँ. तो पार्वती सीता का रूप धर के सामने आ गई टेस्ट करने के लिए. हाँ. यस. तो राम ने प्रणाम करके कहा कि अरे माता जी, आप में अकेले शिव जी को छोड़ के क्यों जंगल में घूम रही? यस. तो पूरा 100% ध्यान था उनको अपने स्वरूप का. ओके. ये सीता तो ये सब लीला था. लीला जिसे बोलते हैं ना, ये लीला है. हाँ, बस. जी महाराज जी प्रणाम. मेरे सब सवाल हुए, मैं यहीं बैठा हूँ अभी थोड़ी देर. अब आप ऐसा है कि सबसे क्षमा मांग के जाइए कि हम जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं सुन सकेंगे. नहीं, बिल्कुल महाराज जी, मैं वास्तव में गिल्टी फील करता हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम थे इसलिए, वरना मैं आखिर तक ही बैठते वास्तव में. जी. ठीक. और आउट ऑफ टर्न लिया, इसके लिए मेरे हमारे साधकों को प्रणाम. चलो ठीक है. इतु घोष, इतु आ जाओ. प्रणाम महाराज. ये पांडे जी भी मेरे साथ आए हुए हैं. तो बताओ, नहीं चले गए? फिर चले गए. पांडे जी को रोज लाया करो. जी, ये तो मैं अहमदाबाद लेके आया हूँ. अच्छा. ठीक है. तो वो तो हर संडे को अहमदाबाद से ज्वाइन कर सकते हैं. नहीं, इंदौर में रोज ज्वाइन कर सकते हैं संडे को. बिल्कुल मैं ज्वाइन करवाऊंगा महाराज. बिल्कुल. ओके महाराज जी प्रणाम. चलो बोलो इतु. जी महाराज, मेरा पहला प्रश्न है. आगे समझ में. हेलो महाराज, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ.
The master would point to himself and say, it is like an image of Shiva that has not been set up by human hands, but it is a natural one that has sprung up, as it were from the bowels of the earth. Please explain this part. हाँ, ऐसा है कि जो कुछ बोलते हैं ऐसे लिंग होते हैं, शिवलिंग बनाते हैं ना, जी जो से बनारस में जो शिवलिंग है ये किसने प्रतिष्ठा किया? इंदौर के अहिल्या भाई, रानी अहिल्या भाई ने विश्वनाथ जी। मंदिर का शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। जी लेकिन कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं कि अपने आप पृथ्वी से अंदर बाहर निकल आते हैं। अच्छा। जैसे शायद वो ऊपर का है, वो कहीं कहीं का है, वो बद्रीनाथ का है या कहीं का है, केदार बद्री का है, जो वो ऑटोमेटिकली निकला हुआ है। जैसे बनारस का ही जो केदारनाथ मंदिर है, तो वहां जी। पे देखोगे कि पत्थर जो है वो पत्थर ऐसा गोल गोल मिला हुआ है, बस नीचे से है, उसने ऊपर से किसी ने बनाया नहीं। इसको बोलते हैं अच्छा। स्वयंभू लिंग, स्वयंभू, हाँ स्वयंभू जी। जो अपने आप हुए हैं। जी जी। अच्छा। सिमिलरली, हाँ, क्या है, हम्म। अब पढ़ो, समझ में आएगा। सिमिलरली श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, पढ़ो तो। The master would point out to himself and say, it is like an image of Shiva that has not been set up by human hands, but it is like a natural one that has sprung up, as it were, from the bowels of the earth. हाँ, ऐसा है, मैं लगता है कि मेरा जन्म किसी माँ के गर्भ से हुआ, ऐसी बात नहीं है। जी जी। ये तो क्योंकि शरीर होना चाहिए तो माँ के गर्भ से ही होगा। हम्म। राम कृष्ण सबका जो अवतार है, इनका शरीर जो है माँ के गर्भ से होता है, लगता है। लेकिन जी एक्चुअली स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक दृष्टि से ये शारीरिक पक्ष तो अत्यंत महत्वहीन है, बहुत कम उसका इम्पोर्टेंस है। उसके जी। जी भीतर जी। जो चीज है वो स्वयंभू है। स्वयंभू शिव है जी। हाँ, श्री राम कृष्ण अच्छा। जो है वो फिजिकल बॉडी के स्वयंभू शिव अंदर है। श्री राम कृष्ण स्वयंभू। शिव है। अच्छा, my महाराज second question. महाराज ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब स्वयंभू ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट अच्छा, नेसेसरी। हाँ। अब ये इसमें नहीं इस मालूम, ये नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। अच्छा महाराज, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, emboldened by the master's words, Bhagavati approached and saluted him, touching his feet like a man stung by a scorpion. Sri Ramakrishna stood up and cried out, Govinda, Govinda. My question is, Girish Babu and Kalipad Babu, they also committed sins, but why Sri Ramakrishna had so bad sensation when Bhagavati touched his feet? अच्छा, जो गिरीश बाबू और कालीपद का तो भगवान ने उससे ज्यादा उनके बीमारी लेके, उनके पाप लेके कैंसर हो गया। जी और जी। भगवती का तो जरा सा टच हुआ है, जरा सा करंट लगा 1 मिनट में, बस जी उससे क्या जी होता। जी। तो फिर उनके कितने हम्म। पाप लिए हैं ठाकुर ने, ठीक उनको तो ठीक, बल्कि हाँ अपना शरीर ठीक। उनको बीमारी इतनी बचा दिया, बीमारी ने। फिर ठीक। हाँ, ठीक है। ठीक है, प्रणाम महाराज। हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए, ये तो हो गए। चलो, तीसरा शिवानी। अरे कोई है कि नहीं, हाँ, शिवानी है कि नहीं? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ हाँ, ईतू जी माइक बंद कर दीजिए। हाँ महाराज, मेरा क्वेश्चन है हाँ, पेज नंबर 119। How is this possible that every enlightened person knows all without formal education? or it does not, a form enlightened person does not know everything, does not mean that would know everything. श्री रामकृष्ण एनलाइटेंड पर्सन तो क्या अवतार थे, वो क्या जानते थे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है, जानते थे क्या? What do you mean by everything? You be महाराज clear about it first. हाँ,
सेकंड क्वेश्चन महाराज पूछो। हाँ पूछो। हाँ यानी सेकंड वन। ऐसा enlightenment, सुनो, enlightenment is spiritual enlightenment which shows that ये जगत का स्वरूप जो है, वास्तविक स्वरूप क्या है पता चलता है। स्वामी जी, इसका मतलब ये नहीं है कि वह उनके डिटेल्स पता चलती हैं। ये स्वरूप के जो मोबाइल फोन है ये सब मिथ्या है, उसके पहले केवल ब्रह्म है। इसका मतलब ये नहीं सब जानते हैं, एवरीथिंग मीन्स ये नहीं जानते हैं कि मोबाइल फोन कैसे काम करता है। स्वामी जी, one related point here. Can I say? यस यस, कैन आई Swami से ji, नहीं, आस्किंग यस। Swamiji, but if somebody does, if an enlightened person, whatever he does concentration and samyam on, he will know about it, is it not? That is because of concentration. Yogi. Concentration. It is concentration. This is something different than enlightenment. Okay, sorry. महाराज, Thank you for clarifying. मुंडक उपनिषद में है ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है? वो भी प्रश्न किया है ना? हाँ, वो इसी तरह का। हाँ यानी जैसे मोबाइल फोन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जान लूं तो मैंने सारे संसार को जान लिया। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो उसके पीछे भी एक है, सब कुछ है। इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के पीछे भी एक ब्रह्म है, उसको जानना तो सब कुछ जान। ठीक है। इस तरह से दैट डज नॉट मीन डिटेल्स में नहीं जाना होगा फिर। हाँ हाँ हाँ, जी जी, समझ हाँ गई। हाँ। महाराज सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर हाँ, 117। फर्स्ट ये बी उसका है, गॉड। ध्रुव का है, ध्रुव का। हाँ जी ध्रुव का। फर्स्ट बी गॉड एंड देन वर्शिप गॉड। हाउ कैन वन बिकम गॉड विदाउट रियलाइजेशन? यू सी, यहाँ पे वर्शिप का आइडिया है, आइडिया स्वामी विवेकानंद जिस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो रियलाइजेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। वर्शिप के ज्यादा बदले रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। रोज जाके मंदिर में जाके पूजा की, विश्वनाथ दर्शन किया, सब कुछ किया, रोज पूजा कर रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि जिस विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। सो इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे बी गॉड एंड देन रियलाइज, देन वर्शिप गॉड। स्वामी विवेकानंद ऑलवेज गेव मोर इम्पोर्टेंस टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? जी महाराज, कि जो आपके अंदर है वो भगवान है, पहले ये समझो। पहले उसको करो, उसके बाद में फिर बाहर में वही की चीज। भगवान बाहर रख के उसकी पूजा करो। एक्चुअली जो पूजा पद्धति होती है ना, एक्चुअल सिस्टम पूजा की जो है, उसमें बैठ कर पहले ध्यान करना पड़ता है, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद में मनी मन चिंतन करता ना करता है, और एक फूल को सिर पे रख के ऐसा करके, और बाहर वो जो इस पर शिवलिंग या मूर्ति के हो उसके ऊपर रखना पड़ता है। मतलब ये है कि मेरे भीतर जो भगवान था वो मैं इस मूर्ति में डाल दिया है। अब मैं मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ, यानी मेरे भीतर के भगवान की पूजा कर रहा हूँ। और उसके बाद जब पूरा खत्म हो जाती है तब हम फिर फूल फूल को लेकर सिर पर रखते हैं, यानी उस मूर्ति से हमने देवता को लेकर हमारे भीतर रख दिया। ये तो प्रोसीजर ही है। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी महाराज, हाँ। ठीक है, थैंक यू महाराज, प्रणाम। अच्छा, अब हुआ, कौन आएगा? निवेदिता आ जाओ। महाराज, पहला प्रश्न है, हाउ कुड रसिक स्वीपर रिकॉग्नाइज्ड एन अवतार? वो जो ठाकुर ग्रेस, भगवान की कृपा से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मतलब आप देखिए, ऑस्टेरिटीज नहीं हो पर ग्रेस हो तो हो सकता है। हाँ, कृपा के ये बिना, कृपा के बोल बिना रहे नहीं होता। कृपा। हाँ, ऑस्टेरिटी होता है तब भी कृपा नहीं होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अच्छा, सेकंड अच्छा, प्रश्न। दूसरी हाँ बात यह है हाँ कि ठाकुर को नरेंद्र ने अवतार जाना और हाँ, रसिक ने अवतार जाना, दोनों वो बराबर नहीं है। वो डिफरेंट है। हाँ, वो तो समझ हाँ, गए। उनके हर एक का अपने अपने अवतार का एक आइडिया होता आइडिया अलग। हाँ है। उसने उसको अपना अवतार समझा।
हाँ हाँ ठाकुर ने, और नरेंद्र ने उसको उच्च प्रकार से समझा ये बात। उन्होंने तो हाँ लोक शिक्षा देने के हिसाब से नहीं, समझा। जो भी हो, हाँ अवतार कंसेप्ट ऑफ अवतार जो है वो प्रत्येक हाँ व्यक्ति का भिन्न है। हाँ हाँ। अच्छा, कुड भोलानाथ मुखोपाध्याय कुड अंडरस्टैंड ठाकुर एज अवतार, आपको मतलब जो आर्टिकल में आपको क्या लगता पढ़ा, है? मैंने पढ़ लिया उसको। हाँ वो ऐसा है कि वो जो टेम्पल स्टाफ का मैनेजर था वो, हाँ 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 तो उसको इन्हें इंटेलिजेंट था इसलिए उसको टेम्पल स्टाफ का मैनेजर बनाया था, हाँ हाँ। और इसलिए समझदार था और वो बुद्धिमान था, बुद्धिमान, इसलिए उसने ये जज कर लिया। उनको समझ गया था अवतार है। उसने वो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल हाँ समझ की बात, इंटेलेक्चुअल, हाँ क्योंकि बुद्धिमान जगह। हाँ अरे निवेदिता, अभी अगर ठाकुर आ जाए, निवेदिता थोड़ी तो समझ जाएगी ना कि अवतार हैं। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, क्योंकि ठाकुर प्रश्न भी पूछते हैं ना उनको। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, why Bholanath was fearful after giving testimony against Shambhu Malik, ये वो तो उसमें ये है कि हम्म, वो क्या है कि वो लीगल मैटर में कोर्ट है, कि केस, हाँ लीगल कोर्ट मैटर केस आ गया था। उसमें ही है, कोर्ट का मामला है, लीगल मैटर हाँ में फंस नहीं जाऊं, अच्छा तो हाँ कुछ नहीं। अच्छा। Why was ठाकुर upset with हृदय and wanted to end his life, ये आप जरा हमको मतलब पढ़ते हैं वो पर पूरा क्लियर तुम्हारा नहीं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, बोले हैं ना ठाकुर की हृदय ने मुझे ऐसे यंत्रणा दी कि मुझे एक बार पोस्ता में मैं अपना हाँ, प्राण देने वो गया। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ ये ऐसा बताइए। है ना कि ठाकुर सांसारिक दृष्टि से तो बिल्कुल बच्चे जैसे थे ना, जी जी हाँ हाँ और वो किसी न किसी पर निर्भर करते थे, हाँ हाँ। और वो ये हृदय, हृदय तो बहुत चतुर था, हाँ चतुर भी था, जिसको कहते हैं ना, श्रूड भी था। श्रूड भी, हाँ हाँ, तो इसलिए ठाकुर हृदय से डरते थे, हाँ और इसलिए जब कुछ क्या बात हुई, क्या हुआ था, तब वो क्यों डूबने के लिए गए थे बोले। हाँ। वो जो सन्यासी गिरी आपका कैसे चलेगा, मैं चला जाता हूँ आप। हाँ हाँ। उनको नहीं रिब्यूक तो कर, ठाकुर क्या है, वो क्या पॉइंट हुआ था। वो बोले ना आपका कैसे मैं चला जाऊंगा तो आपको कौन देखेगा, आपका सन्यासी गिरी का देख लीजिए कैसा होगा, अवतार कौन पूछेगा, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, तो फिर ठाकुर क्या बोले, तो वो ठाकुर ठाकुर को तो क्यों डूबने के लिए क्यों गए। हाँ इसीलिए पूछ रही मैं। नहीं नहीं, वो उसमें और कुछ एक हाँ पॉइंट और और कुछ है। होगा, हाँ। हाँ, एक और पॉइंट है। हाँ, लास्ट प्रश्न है महाराज, भाव मुखे का आप जरा बताइए ना, भाव मुखे क्या होता है? देखो भाव मुख है, ठाकुर का, डिटेल में सुनो, तुमको ही पढ़ना पड़ेगा और तुमको हाँ हाँ बताना पड़ेगा। अच्छा। शारदानंद जी ने लीला प्रसंग में हाँ डिटेल में वो भाव मुख पढ़े महाराज, कितने बार पढ़ते हैं, पर उतना समझ में नहीं आता। शारदानंद जी का डिटेल समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ट्राई से समझा। ठीक है महाराज, ओके। ठीक है, बस प्रणाम महाराज, बस। चलो। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछोगे तो हम कैसे चल पाएंगे। ठीक है। चलो मालिनी। हाँ। Pranam Swamiji. हम्म Question 1, page 119. It is therefore difficult for ordinary people to comprehend what great ones do and how they behave. And the question here is, how can one recognize a great or a realized soul unless he decides not to hide his divinity? Are कौन सा they क्वेश्चन, पेज नंबर। page number 119? वो तो पूरा बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन है शारदानंद का। Huh. No, the question here is, Swamiji, is that जब तक कोई great soul हमें कंफ्यूज ना करे, जब तक वो हमें अपनी reality, unless out of karuna he reveals himself, in how can
you ever know a great soul? Is my question. देखो, What सुनो. You are asking of recognizing great men. याद रखिए. Yes. You see, listen. First point you say is all right. Unless I myself become great, I cannot understand the great. Yes. That is one. Yes. Second is, remember, स्थित प्रज्ञ दर्शन, गुणातीत, ये Yes. गीता में और सर्वत्र महापुरुषों के वर्णन स्पष्ट रूप से दिखे गए हैं. Yes. ये क्यों दिए गए हैं? इसीलिए तो दिए गए हैं. Yes. You will be able to recognize others and you yourself will be able to become that. So already the descriptions are there. Yes. Thank you. Yes, So Swami. you, इसलिए क्या है कि उसके साथ you must evolve yourself, otherwise it is not possible. That means it दोनों will में. come from your heart. You will know. If you purify yourself, even if the person in front is tricking you, you can know. Right? So you are answering your question. Why are you bothering me? No, it's a privilege to bother you to get more. We are greedy. अच्छा, second question. ये तो हो गया. हाँ. This question is over. हाँ जी. Question page 119. Sri Ramakrishna hid himself, one, by the fact that he was illiterate, by always saying, I am a nobody, ask mother, she will tell you, मुझे तो कुछ पता ही नहीं. Next, by choosing to keep wealth, name and fame and splendor at bay, and speaking of renouncing everything, a surefire way of scaring everybody. Okay. Now the question I'm asking you here, can we then conclude that people who are drawn to Thakur are only those who have a great predominance of Sattva Guna? Yes. That You means can say that. You can say that. Thank you. Question, this you've handled, touched on, but I'm going to put it differently so that I get something more. Page 121. One day, Hriday tormented me so much that I stood on the embankment ready to give up my body by jumping into the Ganges when it was at flood tide. At another time, when Hriday tormented me, Thakur thought of leaving Dakshineshwar and going to Banaras. Swamiji, there's another incident, like for example, even when Hriday, when mother had come for the first time to meet Thakur, even that time Hriday told her to go back and Thakur didn't stand up for mother also. Now, these things are very hard to understand. Because Thakur, in one level, with Gauri Pandit, he showed his valor. But here, why did Thakur, who was God himself, not assert himself at sometimes critical points? Please throw some light on this. Does it mean that a sattvic person should just say Ram is considered an avatar? Yes. And he allowed his wife to be taken away. Yes. And then weeping. Yes. Seeing a tree, says, oh Sita. Yes. What is this? Yes. But what about the incident when mother, he didn't protect her? Like then Hriday bullied him. He let mother go back to her village. Same. He is talking in the purely practical, you don't think of avatar now. Okay. Think Sri Ramakrishna is an ordinary human being. But then he was very unfair. And because handpicked by Hriday, everything is done by Hriday. He has become 100% control of Hriday, under in Hriday control, because he is always busy with meditation and eating, drinking, everything is dependent upon Hriday. 100% Hriday. That is why all worldly things Hriday is managing. And misbehaving, yes. Thank you very much. Now I understood this. Thank you. That's it. महाराज जी, इसका और एक explanation है, बोलूं? No.
Any other questions? No, Swamiji. Anyone else? Anyone else's question? हाँ महाराज, हाँ मेरा बोलो, क्वेश्चन नहीं हाँ बोलो. Did you ask? महाराज. हु? कौन बोल रहा है? कुंडू, हाँ महाराज. तुमने क्वेश्चन भेजे थे ना? हाँ वही तो प्रॉब्लम हुआ था. मेरा पहले क्वेश्चन भेजे थे वो सब वो हो गए थे, डिलीट हो गए. एनीवे पूछो. हाँ महाराज, मेरा एक ही है जो प्लीज एक्सप्लेन हाउ Swasambedya can be the proof of a Jnani. Anyone can claim that he is a realized soul. Do you take the statement of the person by itself? No, individually it is Swasamvedya. Acha, I do not take his word. He himself understands that way. He understands it. Okay, man. It depends upon you. You take it or not. Okay, man. Done. Thakur, people used to say he is a madman. He says, I have got realized God. Oh, he has got some visions, he has got some hallucination, and he is considered that he is realizing God. So people will depend upon their own interpretation. But he himself in his mani man जानता है कि मैं भगवान को देखता हूँ. So far as individual is concerned, he has got a definite experience. So samvedya जिसे आप. Okay, man. Then Okay. बाकी क्वेश्चन तो ये तो one cannot enter the spiritual realm without practicing spiritual disciplines, austerities and renunciation. So इसमें austerities क्या करना पड़ता है? तपस इसमें क्या है? जो हम स्वाध्याय करते हैं. It's a very wide subject, very wide. शारीरिक तप है, मानसिक तप है, वाचिक तप है, ये अलग अलग प्रकार के ऑस्टेरिटीज है. मौन रहना है, ये भी तप हो गया. रात्रि को जागरण करना, ये तप हो गया. हाँ. और खाना कम खाना है, खाना नहीं खाना है, ये तप हो गया. So many tapas. It's a big subject, you know. It's a very big subject in the Shastras. So tapas means, as a matter of fact, self-control. Yes. That is the fundamental one. Is Sanyam. Sanyam is the most important aspect of tapas. Sanyam or austerity. तप को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? कष्ट सहनम, दुख सहन. तितिक्षा बोल सकते हो. तप का ही तितिक्षा एंड तपस आर interrelated. Yes, ma'am. Next. Then another question, Maharaj. Now, the relatives of the master must have some qualities, otherwise he won't have born in that family. So, what are those qualities? Why they were skeptical about his nature? मतलब उनका तो कुछ तो क्वालिटीज होंगे, नहीं तो भगवान उनके घर में आते ही नहीं. मास्टर तो क्षुदिराम के तो कितना वर्णन है उसका. क्षुदिराम और चंद्रमणि देवी का तो कितना स्तुति किया है ना उसका. उनका ग्रेट क्वालिटीज का वर्णन है उनकी लाइफ में. हाँ. क्षुदिराम कितने सत्य बोलने वाले थे, उसके कारण सफर भी किया था, उनको निकाल दिया था गांव से. हाँ, तो मेरा कहना है कि then why couldn't they understand? Like Chandramani did not understand the divine nature of Bhagavan. Skeptical तो that is secondary thing. That is secondary thing. That is बुद्धि बौद्धिक विषय. मतलब वही लेकिन जो माया है. क्वालिटी है, एथिकल क्वालिटीज, मॉरल क्वालिटीज, उसमें वो डेफिनेट है. लेकिन इंटेलेक्ट का पॉइंट है, दोनों का फर्क कर दो. हाँ. संयम, तितिक्षा, ये सब है, लेकिन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट की बात अलग होती है. और साधना की दृष्टि से वो नहीं कर रहे हैं. साधना वो दे आर नॉट ट्राइंग टू डू साधना. उन्होंने कभी साधना कोई भगवत दर्शन के लिए साधना वधना नहीं की है, लेकिन सारा जीवन जो था संयम का जीवन. हाँ महाराज, ठीक महाराज. प्रणाम महाराज. महाराज जी, हो गया. जी मैंने
कल 12 बजे खत्म किया ये, तो मैं पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन? नहीं पूछ सकते। हाँ, आप हमेशा इस प्रकार करते हैं, इसलिए मैं नहीं आपको परमिट करता हूँ। हमेशा ऐसा करते हैं जी कल आप। पहले मैं तो चाहता हूँ, यानी लोग जो हैं वो मेरे को वो देना पड़ता है। ये 1 सप्ताह पहले आर्टिकल चला जाता है आप लोगों के पास में, और लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ते हैं। दैट इज नॉट लाइक, दैट इज व्हाई आई एम नॉट, आई कैनॉट, डज नॉट अप्लाई। The asking of question means that you have read the article before that, which you don't do in a last moment. No, this is not the procedure. It cannot be accepted at all. सोचते सोचते निकल जाता है देर करके। नहीं सोचते नहीं, पढ़िए आप पूरा आर्टिकल को and send me 3 days before. मैंने repeat, I have to give on Thursday, I send reminder. According to Sanjay, I told Sanjay, please send reminders that only 3 participants are given ask question. I will also think, I will have to think, I have to think, I have to read, and I write down the answer. हो गया, सब हो गया जी महाराज। संजय? संजय नहीं है जी महाराज। अच्छा ठीक है, और कोई नहीं पूछ रहा। आज 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया बस। पूछ रहा था महाराज जी। हाँ प्रणाम कौन बोल रहा महाराज है? जी, मैं कौन सुचरिता बोल बोल रही हूँ। आज बोलो। 22 एक मुझे पूछना है क्वेश्चन। 22 हाँ भेजा नहीं हाँ आपने? बोलो सुचरिता। हाँ जी महाराज जी, वो ब्लड वॉमिट हुआ ठाकुर को, तो वो बून क्यों बोल रहे हैं? इट वाज अ बून। वो जड़ ग्रंथि टूट गया था ना, वो नहीं ये ठाकुर को जो ठाकुर, आई एम आस्किंग महाराज। इसे वो अकॉर्डिंग तंत्र, इट इज अ तांत्रिक प्रोसेस, यू नो। इन तंत्र देयर इज अ फिजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस। ऐसा बैठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, सीधा करना पड़ेगा। फिजिकल स्ट्रेस होता है बहुत, और ये फिजिकल तो बून स्ट्रेस क्यों अगर बोल रहे हैं? ज्यादा बना रहे तो ब्रेन में इंजरी हो सकती है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए अच्छा। अगर उसको निकल गया, मतलब ये है कि बच हाँ बच गए। जी जी समझ गया। थैंक यू। प्रणाम महाराज। ठीक है। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि हरि ओम ओम तत्सत्। तत्सत्। श्री श्री राम रामकृष्ण कृष्णार्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। भाई मैं बार बार रिपीट करता हूँ, काइंडली आप क्वेश्चंस